Hello, welcome you all. This is lecture series for BMC and it is our first lecture. In this series, we'll discuss about the BMC, which is important for your GATE exam, ESE exam, state PSC's exam, PSU exams, and even for junior engineer exams for different state PSCs and different PSUs. In this case, we'll discuss everything thoroughly. We'll cover all the questions we have been asked in previous year in any competitive exams in India. And these lectures are of one hour or maximum 1.5 hour, and gradually we'll cover everything one by one. Okay, our sequence for covering this whole syllabus is like this. First, I will cover lime, then cement, third, mortar, fourth, aggregate, fifth, water, sixth, concrete. In concrete, we'll discuss about concrete mix design, manufacturing of concrete, next, properties of concrete, next, types of concrete, and defects in concrete, and in concrete only next will be admixtures. So this is concrete. Concrete comprises of these 5 different subtopics. After concrete, we'll discuss about timber, and then brick and brick masonry. And in the end, we'll discuss about stone, steel, aluminium, ceramics, plastics, etc. So some basic of these miscellaneous materials also I will cover. So these are the topics which we are going to cover one by one. Before starting the topic, we should have some idea about the building materials. Building materials or any materials are very much useful to perform engineering on it. Like if you are doing civil engineering, then material is much needed, because we'll apply designs like RCC design. The RCC design is done on RCC. Steel design is done on steel. Similarly, if you are doing anything, like if you are talking about इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फिर सिलिका के मेटल्स होते हैं, वहाँ पे मेटालिक मिनरल्स होते हैं. अगर हम लोग मैकेनिकल की बात करें तो वहाँ पे जो वहाँ पे मटेरियल यूज़ होते हैं वो अलग टाइप के मेटल्स होते हैं. मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी इंजीनियरिंग की बात करें, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग में आपको मटेरियल ज़रूरी होता है, और मटेरियल के बिना इंजीनियरिंग परफॉर्म करना एक तरह से आप इम्पॉसिबल कह सकते हैं, क्योंकि मटेरियल इज़ वेरी मच part of the engineering, क्योंकि we'll perform our engineering on material only. So we civil engineers also do engineering on building materials, and these building materials are quite familiar with all of you. हम सब ने ये building materials कहीं ना कहीं जरूर देखे होते हैं अपने आसपास, अपने घर में, या कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपने हर जगह इनको देखे हुए हैं. So in this lecture series we'll study the behavior of these building materials very you can say very exhaustively. We'll cover every aspect of these materials, how these materials will affect the properties of the structure, how these materials are beneficial for us, how these materials are eco-friendly, how we can make construction economical, and how we can utilize these materials as per availability and our requirement. So this is the main aim of this lecture, and all the lectures will be covered in line with the exam. Whatever exam we are preparing for, like we are mainly preparing for ESE and GATE. So whatever topics we'll cover inside these material topics,
that will be very much oriented with the exam, and definitely everything whatever I will discuss here, that thing must have been asked in previous year exams, and it is very much useful for you all. Okay, so I'm starting here. Okay, so I'm starting first topic, that is lime. This is the first material and it is ancient material, you can say. बहुत ही पुराने टाइम से आपने इस मटेरियल के बने मॉन्यूमेंट्स और इस मटेरियल के बने बिल्डिंग्स या फिर आप महल, जो भी आप कहें, वो आप देखे होंगे, सुने होंगे उनके बारे में, क्योंकि बहुत पहले से जो कंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ होता आया है उसमें लाइम उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है. अगर हम लाइम की बात करें, सो लाइम इज अ टाइप ऑफ बाइंडिंग मटेरियल. लाइम इज अ टाइप ऑफ बाइंडिंग मटेरियल. What do you mean by binding material? अगर आपसे कोई पूछे तो बाइंडिंग मटेरियल का मतलब क्या समझते हैं आप? What do you mean by binding material? So binding material it is very much clear. जो दो चीजों को बाइंड करने के लिए यूज होता है उसको हम कहते हैं बाइंडिंग मटेरियल. और आपने बाइंडिंग मटेरियल जरूर देखे होंगे, आपने एटलीस्ट एडहेसिव्स तो देखे होंगे, जैसे फेविकोल या फेविक्विक व्हाटएवर. तो ये सब क्या है? बाइंडिंग मटेरियल जो दो चीजों को बांधने का काम करते हैं. जैसे आपने फेविकोल देखा होगा, तो फेविकोल क्या होता है? एक स्लरी के फॉर्म में आपके पास एक पैकेट में अवेलेबल होता है, एक लिक्विड के फॉर्म में, और उस लिक्विड को आप दो सरफेसेस के बीच में अप्लाई कर देते हैं और फिर उनको आपस में एक साथ थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और उसके बाद वो उसमें एक ज्वाइंट बन जाता है. अगर आप उसको फिर रिमूव करना चाहते हैं तो वो रिमूव नहीं होता है. वेरी सिंपल एज दैट. तो यहाँ पे भी ये बाइंडिंग मटेरियल है, तो कुछ ऐसा ही बिहेवियर होगा. अब जैसे फेविकोल का यूज हम क्या करते हैं? मान लीजिए टिम्बर को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, या फिर हम सिर्फ पेपर को जोड़ने के लिए यूज करते हैं फॉर एग्जांपल. तो यहाँ पे हम ब्रिक को जोड़ने के लिए यूज कर रहे होंगे, एग्रीगेट को जोड़ने के लिए यूज कर रहे होंगे, बट थिंग इज सेम. ऐसा कुछ नहीं कि डिफरेंट है. जैसे फेविकोल का एग्जांपल लेके चले तो फेविकोल आपको लिक्विड के फॉर्म में दिखता है, लेकिन पहले तो वो लिक्विड नहीं रहता, वो लिक्विड बनाया जाता है. तो क्या रहता है? मोस्टली वो पाउडर होता है, कोई वो पाउडर रहता है और उस पाउडर में हम कोई ना कोई लिक्विड मिला के हम उसका एक स्लरी बनाते हैं और उसको एक डब्बे में पैक कर देते हैं और उस स्लरी को जहां हमें पेस्ट करना होता है वहां पे लगा देते हैं और उसके बाद वहां पे वो बाइंडर का काम करता है. तो सेम यहां पे भी हम लोगों को कुछ करना होता है. आप देखें, चाहे सीमेंट की बात करें या लाइम. सीमेंट पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे. अगर हम लाइम की बात करें तो लाइम में भी ऐसा ही हम कुछ करते हैं कि एक लाइम का पाउडर हमारे पास होता है, उसमें हम वाटर मिलाते हैं, एक स्लरी बनाते हैं और इस स्लरी को हम दो मटेरियल के बीच में, चाहे वो ब्रिक हो या स्टोन हो या एग्रीगेट्स हो, जो भी हो, उनके बीच में रख देंगे तो वो उनके बीच में बाइंडर का काम करेगा. तो दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग मटेरियल. और सीमेंट भी ऐसा ही होता है. सीमेंट भी पाउडर फॉर्म में आपके मार्केट में मिलता है. आप उसको वाटर के साथ मिक्स करके स्लरी बनाते हैं और उस स्लरी को फिर आप जोड़ने के लिए यूज करते हैं. दो मटेरियल के बीच में उसको हम प्लेस करते हैं. सो इट इज वेरी लेमैन लैंग्वेज कि हम इस तरह से बाइंडिंग मटेरियल्स को यूज करते हैं. लाइम जो है ये नेचुरल बाइंडिंग मटेरियल है. अगर यहाँ पे मैं एक वर्ड जोड़ूं तो लाइम इज अ नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल. ये आर्टिफिशियल नहीं होता है, नॉर्मली नेचुरल होता है. आर्टिफिशियल लाइम भी बनते हैं बट विल डिस्कस अबाउट देम लेटर ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल लाइम. तो नेचुरल लाइम जो होते हैं दैट इज नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल. तो ये लाइम एक नेचुरल बाइंडिंग मटेरियल है. कहाँ मिलता है हमें? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लाइम? अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लाइम, तो देखिए, मेन सोर्स ऑफ लाइम, द मेन सोर्स ऑफ लाइम इज बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो लाइम की मेन सोर्स हैं. और जैसे इनका एग्जाम्पल है लाइम स्टोन. लाइम स्टोन, लाइम स्टोन रॉक्स आर मेन एग्जाम्पल ऑफ, यू कैन से, मेन सोर्स ऑफ लाइम. दूसरा है चॉक. चॉक ये भी आपका एक टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक होता है. तो ये भी आपका लाइम का एक सोर्स है. इसके अलावा लाइम के जो दूसरे सोर्स हैं वो हैं कोरल रीफ्स, और इसके अलावा है कंकड़, इटीसी. देखिए, अब ये कोरल रीफ्स क्या होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर दीज कोरल रीफ्स, जो लाइम के सोर्स हैं, ये कोरल रीफ्स हैं क्या? तो कोरल्स जो होते हैं, देखिए इसका मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूं. दीज आर द डायग्राम ऑफ कोरल्स. इसमें दो तरह का डायग्राम आपको दिख रहा है. एक ये रंग बिरंगा डायग्राम है इस तरफ, और एक है ये पूरा वाइट डायग्राम. ये जो है ये ब्लीच्ड कोरल है. ऐसा कोरल है जो ब्लीचिंग हो चुकी है इसकी, ब्लीच्ड कोरल. इसको हम लोग कोरल ब्लीचिंग वर्ड भी आपने सुना होगा. एनवायरमेंट में एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं कोरल ब्लीचिंग. तो
तो ये ब्लीच्ड कोरल है। ब्लीच्ड कोरल का मतलब क्या है, देखिए ये कलरफुल है यहाँ पे और ये यहाँ पे वाइट है बिल्कुल। ये जो कलरफुल है, क्यों कलरफुल है, क्योंकि यहाँ पे कोरल्स के साथ साथ एल्गीज हैं और यू कैन से जूजेंथली एक प्लांट होता है वो है यहाँ पे, तो उस प्लांट की वजह से इसका ये कलर है। लेकिन जब वो प्लांट यहाँ से रिमूव हो जाता है किसी वजह से तो ये बिल्कुल ऐसा बनता है और ये व्हाइट कलर का हो जाता है, व्हाइटिश हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्लीच्ड कोरल। एंड दिस ब्लीच्ड कोरल इज द मेनली सोर्स ऑफ लाइम। और इसी का जब सेडिमेंटेशन, इस ब्लीच्ड कोरल जब सेडिमेंट होते होते, जमा होते होते ये फॉर्मेशन करता है कोरल रीफ्स का। एंड दीज कोरल रीफ्स आर बेसिकली सोर्स ऑफ लाइम लाइक दिस। ये कहाँ मिलते हैं आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ये बिल्कुल कहाँ मिलेंगे, सी एनिमल्स हैं या सी प्लांट्स हैं ये, तो ये सी में ही मिलते हैं, ठीक है। तो इनका जो ये जो ब्लीच्ड कोरल है, ब्लीच्ड कोरल जमा होते होते एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाते बनाते ये रीफ बनाता है। और इसका एग्जांपल है ग्रेट बैरियर रीफ, आपने नाम सुना होगा, ग्रेट बैरियर रीफ, दैट इज एग्जांपल ऑफ कोरल रीफ, ठीक है। एटॉल्स, बैरियर रीफ्स, ये सब क्या होते हैं, कोरल रीफ्स के एग्जाम्पल होते हैं। तो कोरल रीफ का एग्जाम्पल ये है और इससे भी हमें लाइम मिल सकता है, यहाँ से भी हमें लाइम मिलता है और यहाँ से हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइम मिलता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ से हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइम मिलता है, ठीक है। फ्रॉम हियर वी कैन ऑब्टेन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइम, ठीक है। कंकड़, अब कंकड़ की बात करें, सो कंकड़ इज, यहाँ पे इम्प्योर फॉर्म ऑफ लाइम हमें मिलेगा, इम्प्योर फॉर्म ऑफ लाइम मिलेगा, इम्प्योर फॉर्म ऑफ लाइम। क्यों इम्प्योर फॉर्म ऑफ लाइम, क्योंकि कंकड़ इज बेसिकली इम्प्योर लंप ऑफ लाइम प्लस क्ले, यू कैन से। मतलब यहाँ पे कंकड़ किसको कहते हैं, जिसमें लाइम भी होता है, क्ले भी होता है, अदर इम्प्योरिटीज भी होती हैं, इनका एक ये लंप का फॉर्मेशन होता है, एक छोटे छोटे लंप्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग कंकड़ कहते हैं। तो कंकड़ भी आपके सराउंडिंग्स में मिल सकते हैं, बट वहां से जो हमें लाइम मिलेगा दैट विल नॉट बी अ प्योर फॉर्म ऑफ लाइम, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो सबसे मेन एग्जाम्पल जो है which is the most important for us, that is limestone. So limestone is the main example of source of lime, जहां से हमें लाइम ऑब्टेन हो सकता है, ओके। अब लाइम ऑब्टेन कैसे होता है, नाउ विल डिस्कस अबाउट दैट। सो मेन सोर्स ऑफ लाइम इज लाइम स्टोन, मेन सोर्स ऑफ लाइम इज लाइम स्टोन। तो हम लोग लाइम स्टोन से ही प्रोसेसिंग करते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब हमने नेचर से लाइम स्टोन ले लिया, and the chemical formula of this limestone is calcium carbonate. This is the chemical formula normally, because we assume it like this limestone have maximum content of calcium carbonate, because it is in, you can say it, we are assuming it is in purest form, okay. So this is calcium carbonate. अब यहाँ से हमें lime obtain करना है. So how lime is obtained? This calcium carbonate का हम लोग करते हैं calcination. Calcination of this calcium carbonate or limestone is done. Calcination का मतलब होता है हीटिंग एट रेड हॉट टेम्परेचर। इसको हम लोग हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, हीटिंग एट रेड हॉट टेम्परेचर इन सच अ मैनर दैट इट कैन डिसोसिएट इनटू दीज टू कंपोनेंट्स। वी आर calcining calcium carbonate so that it can dissociate into lime and CO2. So this is lime, basically this is limestone and this is lime and plus CO2. So this is the process of calcination. So first of all, limestone obtained from the nature is processed through calcination, which leads to formation of lime and CO2. That lime जो formation हुआ है, that lime is called as quick lime. इसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं. दैट लाइम इज कॉल्ड एज क्विक लाइम इफ दिस इज प्योर लाइमस्टोन. कंडीशन इज दिस इज प्योर लाइमस्टोन. प्योर लाइमस्टोन मीन्स impurity is less than 5%. Impurity is less than 5%, then it is called as pure lime. So if we are calcining pure lime, then we'll obtain quick lime. Okay, so we'll obtaining here quick lime. Now this quick lime, why it is called as quick lime? Why it is called as quick lime? Because it have high tendency to react with water, mainly with water. So it have high tendency to react with water. So wherever it will find water, it will react with it, and it leads to formation of calcium hydroxide plus heat. It leads to formation of calcium hydroxide plus heat. This reaction is called as slaking.
This reaction is called as slaking. So someone can ask you, what is slaking? What you will reply? You will say, sir, reaction of quicklime with water, which leads to formation of calcium hydroxide and heat is also liberated. That reaction is called as slaking. And that is also called as hydration. You can say here, this is also hydration, because reaction with water is called as hydration. So you can also say slaking is hydration of lime. You can say it. Okay. This is called as reaction slaking. Now this lime obtained after slaking is called as slacked lime. It is called as slacked lime. Why it is called as slacked lime? Because it is obtained after slaking. Now this lime will have more volume. Please be careful, it is very important concept. This lime will have more volume. How much more volume? 2 to 2.5 times more. It will have 2 to 2.5 times more volume. जब इतना ज़्यादा इसमें वॉल्यूम होगा as compared to initial volume, then it is also called as, that's why it is also called as fat lime. Why it is called as fat lime? Because of more volume as compared to initial volume. Okay, so this is slacked lime, or you can say this type of lime is also called as fat lime because of more volume. Volume change होने की वजह से, volume increase होने की वजह से, it is also called as fat lime. Now this slacked lime will have very high tendency. This slacked lime will have very high tendency to react with atmospheric CO2. This lime will have very high tendency to react with atmospheric CO2. This is atmospheric CO2, which is available in our atmosphere and which is increasing day by day. As we all know, CO2 emission is increasing day by day. So this is atmospheric CO2, which will be absorbed by the calcium hydroxide. And जब ये absorb होगा, then it leads to formation of calcium carbonate. It leads to formation of calcium carbonate precipitate plus water remove, like this. So this is the reaction. Now this reaction, what is this reaction? Please observe it. What is this reaction? Here what we are doing actually, this calcium hydroxide, which is slacked lime and it is having more volume, means more volume, so it will be either in the form of powder or in the form of slurry. If you are adding more water, then it will be in the form of slurry. If you are adding less water, then it will be in the form of powder. Whatever. It is in form of slurry. Then it is in the form of slurry. And this slurry will absorb the CO2. This slurry will absorb the CO2 from the atmosphere to make the CaCO3 precipitate plus water. यहाँ पे क्या है देखो आप, वाटर और लाइम मिक्स है, लेकिन जैसे इसमें CO2 मिला, लाइम का प्रेसिपिटेट अलग हो गया और आपका वाटर अलग हो गया. तो जब आप इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा? प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करोगे, आपने एक स्लरी बनाया लाइम और वाटर का और उस स्लरी को रख दिया. अब अगर उसने एटमॉस्फेयर से CO2 लिया तो क्या होगा कि जो लाइम होगा वो नीचे बैठ जाएगा और वाटर ऊपर आ जाएगा और वाटर को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं. तो फ्रॉम हियर वी कैन रिमूव द वाटर. और अगर हम इसको वाटर रिमूव कर रहे हैं तो इसके अंदर जो लिक्विडिटी थी वो खत्म हो रही है, ये सॉलिड की तरह सेट हो जाएगा. जब वाटर निकल गया तो ये फ्लूइड नहीं रहा, सॉलिड की तरह सेट हो जाएगा. दैट्स वाई this process is called as setting. But it is taking place in presence of air, that's why it is called as air setting. What do you mean by setting? Setting of cement, आपने सुना होगा. What do you mean by that setting? Setting is the process of change in state of the material. Like concrete is in fluid state. After setting, it will convert into solid state. So the change in the state of material is setting. Setting has nothing to do with the strength. If material is set, it never means it has sufficient strength. Because the process of gaining the strength is gradual process. And it may take time. But setting should be within the stipulated time period. Otherwise, it will be difficult for us to do working with that material.
लाइक सीमेंट के लिए हम कहते हैं कि 10 घंटे में फाइनल सेटिंग आ जानी चाहिए, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा तो काफ़ी देर तक वो वैसे लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो डिफॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. Okay, so this is setting, and this setting is taking place in presence of air. That's why it is called as air setting. This reaction is also called as carbonation reaction. This reaction is also called as carbonation reaction. Carbonation reaction. And this carbonation reaction, about this carbonation reaction, we'll also study in concrete. Why it is called as carbonation reaction? Because CO2 is reacting. Wherever CO2 reaction is taking place, mostly that reaction is carbonation. So here this reaction is also called as carbonation reaction, and it also causes carbonation attack, you can say. कार्बोनेशन अटैक होता है कंक्रीट में, वहाँ पे ही होता है, तो वहाँ पे भी यही रिएक्शन होती है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोनेशन रिएक्शन. ओके, सो वॉट एवर वी हैव डिस्कस सो फार, हमने किया क्या भाई, ध्यान से देखो. हमने लाइमस्टोन लेके आया, लाइमस्टोन लेके आ गए हम नेचर से, उसको हमने कैल्सिनेशन किया, उससे हमें क्विक लाइम मिला. अब क्विक लाइम स्टोन के फॉर्म में होगा, उस स्टोन के फॉर्म में वाटर मिला दिया. जब वाटर मिला दिया तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, स्लरी के फॉर्म में बन गया, और हीट उसके साथ इवॉल्व हुई. यहाँ पे हीट भी निकलती है, हीट निकल गई. ठीक है, अब ये आपका ये स्लैग लाइम बन गया. अब ये जो स्लैग लाइम है हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब ये स्लरी बन चुकी है. मैंने बताया कि किसी भी बाइंडर को यूज करना है तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, स्लरी के फॉर्म में होना चाहिए. तो ये स्लरी बन चुकी है, हम स्लरी को यूज कर सकते हैं. कहाँ यूज कर सकते हैं स्लरी को? चलो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हम इसको यूज कर रहे हैं व्हाइट वॉशिंग में. कहाँ यूज करेंगे? व्हाइट वॉशिंग में. जब हम इसको व्हाइट वॉशिंग में यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे? व्हाइट वॉशिंग मतलब आप समझते हैं, एप्लीकेशन ऑफ अ लेयर ऑफ लाइम ऑन द सरफेस ऑफ एनी फिनिश्ड मटेरियल. तो जब हम इसकी व्हाइट वॉशिंग करेंगे तो इस जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो स्लरी है, हम इसको सरफेस पे अप्लाई कर रहे होंगे. जब इसको सरफेस पे अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जब हम अप्लाई करेंगे तब तो ये फ्लूइड होगा, लेकिन हमारा एम क्या होगा कि थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाए, सेट हो जाए, सॉलिड हो जाए. अदरवाइज फ्लूइड ही रहा हमेशा, तो आप जाके उसको टच करेंगे तो बाहर आ जाएगा. इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? सेट होना चाहिए. और सेट कैसे होगा? वो तुरंत एटमॉस्फेयर से उसको एयर मिलेगी और उस एयर के साथ वो रिएक्शन करेगा. एयर में CO2 होगी और एयर के साथ रिएक्शन करेगा और वो सेट हो जाएगा. सो दिस इज एयर सेटिंग. सिंपल फेविकोल ले लो. फेविकोल का जब तक आपका उसका कैप क्लोज है तब तक वो लिक्विड है. जैसे आप उसको खुले में फैला दो, कैप खोल के हटा दो, वो सेट हो जाता है. क्यों सेट हो जाता है? अरे वो भी तो एयर सेटिंग करता है, वो भी तो एयर से कांटेक्ट में आके एयर से रिएक्शन करता है और सेट हो जाता है. सो दिस इज द सिंपल एयर सेटिंग. सो दिस इज द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ दिस. लेकिन एक चीज और समझो यहाँ पे. अब मैं अगर इसी लाइम को, जो लाइम हमने अभी व्हाइट वॉशिंग में यूज किया और वो प्रॉपर सेट हो गया, बढ़िया. अब इसी लाइम को हमने यूज किया मैसनरी में. मैसनरी समझते हैं? ब्रिक की लेयर. ये ब्रिक लगाते हैं हम लोग इस तरह से, लाइक दिस. ये ब्रिक की लेयर बनाते हैं, इस तरह से ब्रिक बनाते हैं. एक लेयर हो गया, फिर इसके नीचे हम लोग लेयर लगाते हैं लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड एज ब्रिक मैसनरी. ऐसा हम लोग कुछ करते हैं, देखा होगा आपने. अब देखिए, ये जो ब्रिक मैसनरी है, दिस इज ब्रिक मैसनरी. अब इस ब्रिक मैसनरी के बीच में भी हम लोग मोटार लगाते हैं. आपने देखा है, यहाँ पे मोटार होती है लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मोटार होती है. ठीक, इनके जॉइंट्स में भी मोटार होती है. सारे जॉइंट्स में हम लोग मोटार फिल करते हैं. ओके, अच्छा, सब लोग मोटार जानते हैं. मोटार का मतलब क्या होता है? इट इज अ मिक्स ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, जैसा कि लाइम, और उसके साथ सैंड. नॉर्मली सैंड हम लोग मिक्स करते हैं. और क्या क्या मिक्स करते हैं, विल डिस्कस इन केस ऑफ मोटार. जब हम चैप्टर पढ़ेंगे मोटार का तो वहां बताएंगे कि हम लोग बाइंडिंग मटेरियल के साथ और क्या मिक्स करते हैं. बट नॉर्मली हम लोग सैंड मिक्स करते हैं. तो दिस इज ऑल्सो मोटार. और ये मोटार किसका किसका मिक्स है? लाइम का. वही लाइम स्लरी जो हमने भी बनाया था. यहाँ पे जो लाइम स्लरी हमने बनाया, ये लाइम स्लरी जो हमने बनाया इस लाइम का, और साथ में हमने मिला दिया सैंड, और उसको हमने मोटार बना के मोटार की लेयर हमने यहाँ पे लगा दिया. चलो ठीक है, मोटार की लेयर हमने लगा दी. अब हमको पता है कि यहाँ पे भी सेटिंग होनी चाहिए. अगर सेट नहीं होगा तो स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी. अगर इसको सेट होना है तो यहाँ पे भी सेटिंग की रिएक्शन होनी चाहिए. और सेटिंग की रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? एयर. और एयर किनारों पे तो इजीली अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन जो सेंट्रल पोर्शन है, कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे एयर इजीली एंटर नहीं कर पाएगी. और अगर एयर एंटर नहीं कर पाएगी तो वो पोर्शन में एयर सेटिंग नहीं होगा. और अगर एयर सेटिंग नहीं होगा तो अगर आप 10 दिन बाद भी इस ब्रिक को उठा के देखोगे, 4 दिन बाद भी देखोगे, तो वहां पे वो आपको फ्लूइड ही दिखेगा. और जब तक सेटिंग नहीं होगा तो स्ट्रेंथ गेन की तो बात ही नहीं है. इसका मतलब क्या है
कि यहाँ पे अगर हम जो लाइम हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, इस लाइम को अगर हर जगह यूज़ करेंगे तो कुछ जगहों पे प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे जगहों पे? वेयर सर्कुलेशन ऑफ एयर इज नॉट वेरी सफिशियंट, जहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ एयर इज नॉट वेरी सफिशियंट, एट दोज लोकेशंस सेटिंग ऑफ दिस लाइम इज डिफिकल्ट। और ऐसे जो लोकेशंस हैं उनको हम लोग कहते हैं डैम्प लोकेशंस, डैम्प लोकेशंस या फिर अंडर वाटर, डैम्प लोकेशंस या अंडर वाटर। सो सेटिंग ऑफ कॉन्क्रीट इन डैम्प लोकेशंस अंडर वाटर and that is made of lime is very difficult because circulation of air is not free, not sufficient. So how we can use then lime in case of making of mortar in concrete? It is a big question. अगर उसकी सेटिंग नहीं होगी तो हम उस लाइम को कैसे यूज कर सकते हैं मोटार बनाने में या कंक्रीट बनाने में? ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन घूमेगा। तो अब यहां पे एक टर्म मैं आपको डिफाइन करके बताता हूं, वन टर्म that is called as hydrolicity, a term that is called as hydrolicity. This is a term that is called as hydrolicity. Hydrolicity क्या है कि एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है by virtue of which, इस प्रॉपर्टी की वजह से, by virtue of which any binding material जिसमें भी है ये, any binding material can set even in damp locations, oblique underwater. तो अगर हाइड्रोलिसिटी आ जाए लाइम में, इफ वी आर सक्सेसफुल इन इंट्रोड्यूसिंग हाइड्रोलिसिटी इन द लाइम, then we can use it everywhere. Now how hydrolicity can be introduced? Okay, so hydrolicity कैसे आएगी लाइम में? अब हमारा ये टारगेट होगा। हाइड्रोलिसिटी क्या है समझ में आया आपको? हाइड्रोलिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बाइंडिंग मटेरियल, इवन फॉर लाइम ऑल्सो द सेम डेफिनेशन इज applicable, that lime can set even under water or even in damp location, then it is called as hydraulic lime or hydrolicity in the lime. So how we can introduce this hydrolicity in the lime? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारी चीज़ें की गई और उसके बाद हाइड्रोलिसिटी लाइम में पाई गई। कैसे आई हाइड्रोलिसिटी? तो यहाँ पे जो लाइम जिसमें हाइड्रोलिसिटी होती है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक लाइम, और यहाँ पे दो टाइप के हाइड्रोलिक लाइम पिक्चर में आए। एक था नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम, नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम, एंड दूसरा आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम, आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम। नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम में क्या हमें मिला कि ऐसा लाइमस्टोन which includes some impurities like clay, magnesium carbonate, magnesia, silicates, sulfates in optimum percentage, not more than 30% gives hydraulic lime. So this is the definition of natural hydraulic lime. क्या पता चला आपको? नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम हमें मिलेगा अगर लाइम स्टोन के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हों। और कौन सी हैं वो इम्प्योरिटीज? वो इम्प्योरिटीज हों क्ले की, मैग्नीशिया की, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, कुछ सिलिकेट्स की या सल्फेट्स की, इस टाइप की अगर इम्प्योरिटीज हैं इसके अंदर, देन इट विल मेक द लाइम हाइड्रोलिक। दिस इज नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, तो नेचर में अब हमें ऐसे लाइम की तलाश होगी जिसके अंदर ये इंप्योरिटीज हो, बट दोज इंप्योरिटीज शुड आल्सो बी इन कंट्रोल्ड अमाउंट। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि इंप्योरिटीज हो तो फिर क्या मतलब।
So these impurities should also be in controlled amount. If these impurities are present in lime in controlled amount, then obviously it will leads to make the lime hydraulic. Hydraulic lime का मतलब क्या होगा? That lime will set even under water. That lime will set even in damp locations. Okay, so this is natural hydraulic lime. Next one is artificial hydraulic lime. Artificially, we are introducing here impurities. Here we are introducing impurities. Here we are introducing impurities artificially. अब यहां पे हमने आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया है impurities को, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया है, so it is called as artificial hydraulic lime. We'll discuss in detail about artificial hydraulic lime. I am giving a hint only that it is very important, it is widely used. Artificial hydraulic lime is widely used. So we'll discuss in detail about artificial hydraulic lime. So far I think it is very much clear what is hydraulic lime and what is non-hydraulic lime. Non-hydraulic lime means which do not have tendency to set in damp location underwater. But hydraulic lime is a lime which can set even under damp condition and even under water. Now I will move further towards classification of lime. Classification of lime. What is the classification of lime? So lime classification can be done on different basis. First classification is done on the basis of impurities. जो हमने भी डिस्कस किया, impurities के बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ impurities. तो क्या है क्लासिफिकेशन? देखिए, व्हाट इज दिस क्लासिफिकेशन. देयर विल बी 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लाइम. फर्स्ट वन is pure lime. Second one is hydraulic lime, and third one is poor lime. Okay, so first one is pure lime. Now what is this pure lime? Listen, this is the limestone, this is the lime obtained from pure limestone. Lime obtained from pure limestone, जिसमें impurities जो होंगी, impurities less than 5%. तो ये limestone कहाँ से मिला है? ये lime कहाँ से मिला है? pure limestone से, जिसमें impurities कम है. किससे कम है? 5% से. Then it is called as pure limestone. The lime obtained from that pure limestone is called as pure lime. और ये जो रिएक्शन हमने देखी थी यहाँ पे, this reaction is of pure lime only. ये जो भी रिएक्शन आपके सामने है, this reaction of pure lime only. So this is pure lime. Now listen, pure lime. Now pure lime is also called as quick lime. Pure lime is also called as quick lime. We have already discussed because it is having quick tendency to react with water. Next, these are also called as slacked lime. After slacking, it is also called as slacked lime. It is also called as fat lime. Why fat lime? Because volume will increase, then it is also called as fat lime. It will be pure white in color. It will be pure white in color. Why? Because of purity, it will be pure white in color. And slurry of this lime is called as milk of lime. जो इसकी स्लरी होती है उसको हम लोग कहते हैं milk of lime. Next, this is caustic lime. इसको हम लोग और क्या कहते हैं? caustic lime. ठीक है, ये जो लाइम होता है, आपको याद होगा, इसमें विग्रस स्लेकिंग, बहुत फास्ट स्लेकिंग होगी. स्लेकिंग की रिएक्शन बहुत फास्ट होती है क्योंकि इसमें क्विक टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है. हाईली प्लास्टिक, ये हाईली प्लास्टिक नेचर का है. इसके अंदर हाईली प्लास्टिसिटी होती है, हाईली प्लास्टिक नेचर का होता है. दिस आर टेंडेंसी ऑफ प्योर लाइम. इसके अलावा दिस इज
वाइडली यूज्ड, कहाँ यूज होता है ये अगर आपसे कोई पूछे वेयर इट इज यूज्ड, तो आप कहेंगे इट इज वाइडली यूज्ड इन सरफेस एप्लीकेशंस। ठीक है, सरफेस एप्लीकेशंस, सरफेस एप्लीकेशंस। क्यों सरफेस पे, क्यों अप्लाई होता है सरफेस पे? दो रीजन है। फर्स्ट वन, बेटर अपीयरेंस, क्योंकि प्योर वाइट है। दूसरा, एयर सेटिंग। सो सरफेस एप्लीकेशंस लाइक वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग, प्लास्टरिंग, वाइट वॉशिंग, प्लास्टरिंग etc, ऐसी जगहों पे हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज प्योर लाइम। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट hydraulic lime. This hydraulic lime is obtained from limestone, having impurities up to 30%, ये ऐसे लाइमस्टोन से हमें मिलेगा जिसमें इंप्योरिटीज होंगी, और कितनी इंप्योरिटीज होंगी? अप टू 30%, 30% तक इंप्योरिटीज होंगी। दिस लाइमस्टोन विल बी हाइड्रोलिक इन नेचर। ये हाइड्रोलिक लाइम है तो हाइड्रोलिक नेचर होगा, हाइड्रोलिक लाइम, ये नेचर में ही हाइड्रोलिक होगा, हाइड्रोलिक इन नेचर। एंड व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोलिक? वी ऑल नो हाइड्रोलिक मतलब इट कैन सेट इवन इन डैम्प लोकेशन, इवन अंडर वाटर। नेक्स्ट, बेटर सेटिंग एंड स्ट्रेंथ। जब ये हाइड्रोलिक है तो हाइड्रोलिक हमने बनाया ही क्यों इसको? फॉर बेटर सेटिंग एंड स्ट्रेंथ। इंप्योरिटीज होने की वजह से इसमें स्ट्रेंथ भी बेटर हमें मिलती है। सो बेटर सेटिंग एंड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, इट इज ऑफ वाइट इन कलर, इट इज ऑफ वाइट इन कलर। वाई ऑफ वाइट? क्यों ऑफ वाइट होगा? प्योर वाइट नहीं है, बिकॉज ऑफ इंप्योरिटीज। नेक्स्ट, कंपेरेटिवली लेस स्लेकिंग, कंपेरेटिवली लेस स्लेकिंग। अगर हम कंपेयर करें एज कंपेयर टू प्योर लाइम तो इसमें स्लेकिंग कम होगी। वाई? बिकॉज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ क्विक लाइम। हियर अमाउंट ऑफ क्विक लाइम इज लेसर, देन स्लेकिंग इज ऑल्सो लेस। बट इट इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ मोर्टार, कंक्रीट etc। ठीक है, सो फॉर मेकिंग ऑफ लाइम मोर्टार, लाइम कंक्रीट etc, इन सब को बनाने में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है, इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज इमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम, जो कि सबसे अच्छा हाइड्रोलिक लाइम होगा, इमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम। दूसरा होता है मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम, और तीसरा होता है, दैट इज थर्ड वन इज फीबली हाइड्रोलिक लाइम। सो दीज 3 classifications आर देयर इन हाइड्रोलिक लाइम्स ऑल्सो। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम इज वाइडली यूज्ड, वाई? बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू सेट इवन in damp locations. It can set everywhere, even in damp location. That's why it is very much useful for civil engineering purpose. Now, poor lime. Now we'll discuss about poor lime. This lime is obtained from limestone having impurities greater than 30%. अब अगर इंप्योरिटीज 30% से ज्यादा हो गई तो इसको हम लोग कहेंगे पुअर लाइमस्टोन, क्योंकि बहुत ज्यादा इंप्योरिटी है। इसी वजह से इट विल हैव नाइदर स्लेकिंग नॉर सेटिंग, मतलब दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। ज्यादा इंप्योरिटी होने की वजह से दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे। वेरी लेस स्लेकिंग, यहां पे स्लेकिंग बहुत ही कम होगी, एंड लेस सेटिंग ऑल्सो, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां पे दोनों ही नहीं मिलेगा। प्योर होता तो स्लेकिंग मिलता, हाइड्रोलिक होता तो सेटिंग मिलता, पुअर है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कलर जो होगा इसका, कलर विल बी मडी वाइट कलर, बिकॉज ऑफ क्ले इट इज मडी वाइट इन कलर बिकॉज ऑफ impurities. Next, it is used for
inferior works. It is used for inferior works. इसको हम लोग बहुत ही अच्छे कामों में यूज नहीं करते. नॉर्मली इंफीरियर वर्क्स में हम लोग इसको यूज करते हैं, जैसे मोटार यूज्ड फॉर ब्रिक वर्क इन ऑर्चिड. ऑर्चिड मतलब बगीचे में आपको पेड़ों के किनारे किनारे ब्रिक वर्क करना है, तो वहां पे मोटार जो यूज करनी है हम लोग पुअर लाइम यूज कर सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि दिस इज सेकंड कैटेगरी, और यू कैन से दिस इज पुअर कैटेगरी विच वी कैन यूज एट इंफीरियर प्लेसेस, जहां पे हमें बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है स्ट्रेंथ का या सेटिंग का, वहां पे हम इसको यूज कर लेते हैं. सरफेस पे इसको इसलिए अप्लाई नहीं करते क्योंकि ये मडी वाइट है, मडी कलर है, तो मडी कलर कैन नॉट बी अप्लाइड इन वाइट वॉशिंग. सो ये सब इसकी लिमिटेशंस हैं. दिस इज पुअर लाइम. नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, एक और क्लासिफिकेशन है लाइम का. लाइम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ IS code, that is IS 712. On the basis of IS 712, क्या क्लासिफिकेशन एज पर IS बेसिस ऑफ IS 712? IS 712 में लाइम को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है. यहाँ पे एक्चुअली क्लास हैं, क्लासेस बहुत सारे हैं, क्लास होंगे, और यहाँ पे टाइप होगा कि किस टाइप के लाइम को किस क्लास में डिवाइड किया गया है. And this division in mainly on the basis of use, or you can say popularity, or you can say availability, उस हिसाब से इसको क्लासिफाई किया गया है. तो क्लास ए में कौन सा लाइम आएगा? आप सोच समझ के बताइए, क्लास ए में कौन सा लाइम आएगा? अगर यूज की बात करें तो सबसे ज्यादा यूज कौन सा लाइम होता होगा? हाइड्रोलिक लाइम. और हाइड्रोलिक लाइम में भी कौन सा लाइम? इमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम. सो दिस इज क्लास ए. क्लास बी में यूज क्या होगा? मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम. दैट विल बी मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम दैट विल बी यूज्ड इन क्लास बी. क्लास सी में आ जाता है फैट लाइम, दैट इज अ फॉर्म ऑफ प्योर लाइम. ठीक है, विच इज अप्लाइड ऑन द मेनली सरफेस. क्लास डी, यहां आता है डोलोमिटिक लाइम दैट इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन द सरफेस. ये भी ऑन सरफेस. ठीक है, तो ये भी सरफेस पे अप्लाई होता है. दिस इज डोलोमिटिक लाइम. क्लास ई, दैट इज कंकर्ड लाइम. impurities is more, then its use is less, that is conquered line. And next one is class F, that is siliceous dolomitic lime. That is, you can say, a poor lime, example of poor lime. So this is the way of classification as per IS 712. Here classification is in different classes. Class A is eminent hydraulic lime, class B is moderate hydraulic lime, and like this. And according to these classes only, जब हम यूज करते हैं तो कितनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए, इसकी भी टेबल आपको गिवन है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग लाइम या कॉन्क्रीट इससे बनाते हैं. नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ लाइम. व्हाट इज द यूज ऑफ लाइम? कहाँ यूज हो रहा है लाइम? तो अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें, सो इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इट इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, हम सबको पता है वाइट वॉशिंग, प्लास्टरिंग, ठीक है, इन मेसनरी मोटार, कंक्रीट, etc. तो इन सब जगहों पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. अगर हम लोग अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बात करें, अपार्ट फ्रॉम, तो कहां यूज होता है? इन सीमेंट मेकिंग, पेंट मेकिंग, etc. यहां पे भी यूज होता है. इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. आपने पढ़ा होगा लाइम सोडा प्रोसेस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वहां पे भी यूज होता है. नेक्स्ट, इन सॉइल स्टेबलाइजेशन, जो एक्सपेंसिव सॉइल होती हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए भी ये यूज होता है. इन मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑल्सो, मेटलर्जिकल ऑपरेशन, मेटलर्जी में भी यूज होता है. इट मेटलर्जिकल ऑपरेशन, इट एक्ट एज फ्लक्स विच हेल्प्स इन मेल्टिंग ऑफ द मेटल. It is used in glass manufacturing,
ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है, etc. सो ये सब कुछ यूज है लाइम के, जो अलग अलग जगहों पे लाइम यूज होता है. लाइम हैव डिफरेंट यूजेस, बट जो इंपॉर्टेंट यूज है यहाँ पे जो हम लोग आजकल करते हैं लाइम का इन मोटार मेकिंग, तो एक होता है देखिए लाइम मोटार, एक होता है सीमेंट मोटार, और एक होता है गेज्ड मोटार. अब यहां पे लाइम के यूज से रिलेटेड है इसलिए डिस्कस कर रहा हूं. 3 टाइप के मोटार होते हैं आपके, लाइम मोटार, सीमेंट मोटार और गेज्ड मोटार. लाइम मोटार में क्या होगा, मेनली लाइम प्लस सैंड. सीमेंट मोटार में सीमेंट प्लस सैंड. यहां क्या होता है, सीमेंट प्लस लाइम प्लस सैंड. अब ये देखिए, तो हमें ये गेज्ड मोटार में डिस्कशन करना है. गेज्ड मोटार हम बना रहे हैं जिसमें हम लोग सीमेंट भी यूज कर रहे हैं, लाइम भी यूज कर रहे हैं और सैंड भी यूज कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इसमें लाइम क्यों यूज कर रहे हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइम हियर व्हेन ऑलरेडी वी आर यूजिंग सीमेंट, देन व्हाट इज द सेंस ऑफ यूजिंग लाइम हियर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस गेज मोटार, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं. तो ड्यू टू एडिशन ऑफ लाइम in cement mortar become, जो मोटार का सरफेस होता है, मोटार बिकम, पहला मोर वर्केबल. पहली बात तो आपका मोटार वर्केबल हो जाएगा. दूसरा लेस श्रिंकेज, आपको श्रिंकेज कम मिलेगा. एंड थर्ड वन इज स्मूथ सरफेस. तो ये 3 एडवांटेज हैं जिसकी वजह से हम लोग लाइम ऐड करते हैं. फर्स्ट एडवांटेज वर्केबिलिटी. वाई वर्केबिलिटी? बिकॉज ऑफ प्लास्टिक नेचर ऑफ लाइम. नेचर ऑफ लाइम जो प्लास्टिक है, इस वजह से यहां पे वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, इजिली डिफॉर्मेबल हो जाता है. लेस श्रिंकेज क्यों? बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंटिविटी टेंडेंसी ऑफ लाइम. अब देखिए, जो कोई भी मटेरियल में श्रिंकेज कब होता है, जब उसमें से वाटर बाहर निकलता है, तभी तो वॉल्यूम रिडक्शन होता है. और अगर वो वाटर तेजी से बाहर निकलता है तो तेजी से श्रिंकेज होता है. अगर वो वाटर धीरे धीरे बाहर निकलता है तो धीरे धीरे श्रिंकेज होता है. अगर श्रिंकेज तेजी से होगा तो हमारे लिए डेंजरस होगा. क्यों डेंजरस होगा? क्योंकि अगर तेजी से वॉल्यूम रिडक्शन होगा तो क्रैक्स डेवलपमेंट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, तेजी से क्रैक डेवलप होंगे, एंड विच लीड्स टू डिटोरेशन इन द स्ट्रक्चर. तो यहां पे लाइम के प्रेजेंस की वजह से श्रिंकेज कम हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइम हैव टेंडेंसी टू रिटेन द वाटर. It is having water retentivity. It will retain the water. And if it will retain the water, then water removal will be slower. And if water removal is slower, then definitely the tendency of shrinkage will reduce. Now, smooth surface. Why smooth surface? Because of fine particles of lime. Lime particles will fill the voids inside the cement, and definitely it will give smooth surface. So these are the advantages of using gauged mortar over cement mortar. If we are adding some amount of lime, then obviously it become more preferable to use gauged mortar in comparison to cement mortar. Okay? Now, एक चीज और डिस्कस करते हैं. मैंने आपको बोला कि एक नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम होता है. एक नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम होता है जिसमें हम लोग क्या क्या मिलाते हैं, याद करिएगा. इसमें लाइम होता है और प्लस अराउंड 30% इम्प्यूरिटीज होती हैं, और ये नेचुरल होती हैं, ये हम मिलाते नहीं हैं, ये नेचुरल हैं. दिस इम्प्यूरिटीज आर नेचुरल, दिस आर नेचुरली प्रेजेंट. अब हम लोग अगर आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम बना रहे हैं, तो इसमें भी तो यही मिलाएंगे, जो इसमें नेचुरली है वही हम लोग आर्टिफिशियली मिलाएंगे. तो आर्टिफिशियली हम लोग क्या मिलाएंगे? 2 रॉ मटेरियल होंगे. एक लाइमस्टोन होगा जो प्योर लाइमस्टोन होगा, और प्लस इसमें हम लोग इंप्यूरिटीज मिलाएंगे. और इंप्यूरिटीज में आपको याद होगा जो हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी देने में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंप्यूरिटी है, दैट इज क्ले. और क्ले अप टू कितना हो सकता है? अप टू अप्रोक्सीमेटली 30%. इतना हम लोग इसको मिलाते हैं, इंप्यूरिटीज को मिलाते हैं. इंप्यूरिटीज में मेनली हम लोग क्ले मिलाते हैं, एंड दैट इज अप टू 30%. और इन दोनों को मिला के अगर हम लोग आर्टिफिशियली कुछ बनाएंगे तो उसको हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम. ठीक. अब आप देखिए, बहुत सारे रिसर्च किए गए
और रिसर्च करके बोला गया कि जब हम आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम मिलाएंगे तो लाइम जो होगा उसमें अराउंड 60 to 67% रखना, और उसमें इम्प्योरिटीज़ में जो क्ले है मेनली तो सिलिका है, तो सिलिका 17 to 25% रखना। उसके बाद इसमें एल्यूमिना, ये इम्प्योरिटीज़ में ये सब प्रेजेंट होता है क्ले में, वो 3 to 8% तक हो सकता है। इसमें आयरन ऑक्साइड है तो और अच्छा है, इसकी रेंज हो सकती 0.5 to 6%। इसमें अगर मैग्नीशिया हो सकता है तो ये भी 1 से 3% तक हो सकता है। अगर सल्फेट हो सकता है तो ये भी 1 से 3% हो सकता है। एल्कलीज चाहिए नहीं अगर, लेकिन अगर प्रेजेंट हैं तो अगर ये लेस देन 1% है तो चलेगा। इंपॉर्टेंट बात आप देखिए, हमने किया क्या, लाइम प्लस इंप्योरिटीज, ये लाइम प्लस इंप्योरिटीज, और इन इंप्योरिटीज का इस तरह से प्रोपोर्शन डिसाइड कर लिया। अराउंड 70%, अप्रोक्सीमेटली 70% लाइम है, 30% इंप्योरिटीज है। यहां पे भी अराउंड 70% लाइम है, रेस्ट इंप्योरिटीज है। इसको हम लोग आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम कहते हैं और इसको हम लोग सीमेंट कहते हैं। इसको हम लोग आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम कह रहे हैं और इसको सीमेंट कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सीमेंट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम और नॉट। बस आप ये मुझे बता दीजिए कि सीमेंट आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम है कि नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम में क्या चाहिए हमें, 70% के आसपास प्योर लाइमस्टोन और 30% तक इंप्योरिटीज। सीमेंट में आप देखें अगर गौर से तो ये परसेंटेज किसके हैं, ये सीमेंट के परसेंटेज हैं। अगर आप देखें ध्यान से, ये सीमेंट हम लोग आगे सीमेंट पढ़ेंगे, एग्जैक्टली सेम यही परसेंटेज वहां पे यूज करेंगे कि इट शुड हैव लाइम अराउंड दिस परसेंट ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एंड ऑल, एंड दीज ऑल इंप्योरिटीज कैन बी प्रेजेंट इन क्ले। सो दीज आर बेसिकली क्ले एंड दीज आर लाइम, एंड लाइम प्लस क्ले इज बेसिकली hydraulic lime, and here it is artificially mixed, so it is artificial hydraulic lime, and artificial hydraulic lime is also called as cement. So cement is a type of artificial hydraulic lime. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे what is artificial hydraulic lime, then you will say sir cement is an example of artificial hydraulic lime where we are making cement which includes lime plus impurities. So अब आपसे अगर मैं पूछूं कि सीमेंट वाटर के अंडर सेट होगा कि नहीं होगा, अरे डेफिनेटली सेट होगा बिकॉज इट इज हाइड्रोलिक. So 99% of cement will set under water. 99% of cement can set in damp locations. सीमेंट में एयर सेटिंग नहीं है, एयर सेटिंग जरूरी नहीं है, एयर सेट के बिना भी ये सेट हो जाता है, इवन इन डैम्प लोकेशन भी ये सेट हो जाता है, बिकॉज इट इज हाइड्रोलिक लाइम, बिकॉज इट इज आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम. सो यू कैन ऑब्जर्व हियर दैट सीमेंट का जो ओरिजिन है वो लाइम से ही हुआ है. दैट्स वाई बिफोर टीचिंग सीमेंट मैं आपको पहले लाइम के बारे में डिस्कस किया. तो जो लाइम है वहीं से हमें सीमेंट की एक जो इमेजिनेशन होती है या जो हमने सीमेंट के बारे में इमेजिन करना शुरू किया होगा वो आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम जैसा कुछ सोच के ही हमने बनाया होगा. एंड आज के टाइम पे हमने लाइम की जगह पूरी तरह से आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम मीन्स सीमेंट यूज करना शुरू कर दिया है. एंड सीमेंट इज वाइडली यूज्ड नाउअडेज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर वी गो, फ्रॉम वेयर वी अचीव्ड सीमेंट. ठीक है, आज के टाइम में अगर आप देखें तो इंडिया में सीमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. अलग अलग टाइप के सीमेंट आपको मिलेंगे. हम लोग पूरी स्टडी करेंगे सीमेंट के बारे में कि किस तरह से सीमेंट यूज़ होता है, किस टाइप का सीमेंट होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे कोई पूछे कि सीमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, तो आप कह सकते हैं कि सीमेंट कैन बी ऑफ ऑल्सो 2 टाइप्स, हाइड्रोलिक सीमेंट और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट. 99% सीमेंट जो इस कंपोजिशन के होते हैं वो हाइड्रोलिक होते हैं, बट कुछ सीमेंट नॉन हाइड्रोलिक भी होते हैं, बट दैट इज लेस देन 1%. और वो हैं जैसे जिप्सम सीमेंट. जिप्सम को अगर हम एज अ बाइंडिंग यूज करें तो उसको भी सीमेंट बोल सकते हैं, या प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर इनको हम यूज करें तो ये भी सीमेंट है, बट दीज आर नॉन हाइड्रोलिक क्योंकि उनके अंदर इंप्योरिटीज का ये परसेंटेज नहीं होता. बट 99% सीमेंट्स आर हाइड्रोलिक. सो हाइड्रोलिक सीमेंट नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि ये सीमेंट है, बट उसका पीछे हाइड्रोलिक वर्ड हिडन है क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीमेंट्स आर हाइड्रोलिक इन नेचर. Okay, so this is first lecture. I'm closing here. In next lecture we'll discuss about cement and detail of about cement, and cement के बाद फिर further जैसे हमें आगे डिस्कस करना है वो करेंगे. Thank you very much.